Hello everyone, IT and Bharti welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the lesson Crying, class 5th NCERT English. So dear friends, first of all, I am going to explain you the questions of Let's Read. This is the solution part of this lesson. In this video I am explaining all the questions with their solutions. Solutions are written just near the question. Okay, let's read the first question. According to the poet, should you cry a little or you cry a lot? See this question. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? आपको पोएट जो इस पोएम में एक्सप्लेन कर रहा है उसके हिसाब से आपको खूब रोना चाहिए या बहुत थोड़ा रोना चाहिए. तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. पोएट कहता है इस पोएम में कि हमें जब हम रो रहे हों तो हमें खूब अच्छे से रो लेना चाहिए जिससे कि हमारे कष्ट और शिकायत दूर हो जाए. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी शुड ओपन आवर विंडो एंड लाफ फ्रीली. जब हम लोग खूब अच्छे से रो लेते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, तो हम लोग को अपना विंडो खोलना चाहिए और खूब अच्छे से हंसना चाहिए. इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अपना दुख दूसरों को न दिखा के जब खुश हों तो वो खुशी दूसरों के साथ शेयर करें. थर्ड क्वेश्चन. रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम. इज द मूड. फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड. मूड कौन सा है फर्स्ट टू लाइन्स में? तो फर्स्ट टू लाइन्स है क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज. आप देख लीजिए. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो आप लोग फर्स्ट टू लाइन्स में देख सकते हैं. फर्स्ट टू लाइन्स में सैडनेस है, वो रो रहा है. Crying only a little bit is no use. He is sad. ओके, तो ये पार्ट आपका इस क्वेश्चन में जो सेकंड है सैड, ये सही है. ओके, सो यू मस्ट टेक इट एज अ करेक्ट ऑप्शन. Now come to the second part of third question. In the last few lines, the mood of the poet has changed. What is it now? In the last few lines, the poet says that now the child is happy. Actually, he has wept all his sorrows. So now he is very happy. He has opened his window. He has splashed into the shower. That's why he is very happy because he has wept all his sorrows. Now come to the fourth question. Are these sentences right or wrong? Poet says you must not cry much. Poet कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. ये सही है गलत? I don't think this option is correct. It is incorrect. So we put incorrect option in front of this. Okay, this is not correct. Now the poet says that you should cry till your pillow is soaked. Yes, it is correct option. You must cry till your pillow is soaked. Now come to third. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. Yes, it is correct option, so that people can see that you are happy. You have to wept all your sorrows. Okay, this is correct option. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. No, it is not correct. You should not show that you are crying. You should not cry at all because you are brave. You must be brave. Okay, you should be able to face the conditions. Whatever the conditions, you must not cry. But if you are feeling sad, you are crying, you must cry a lot so that you can weep. You can wipe out all your sorrows. Okay, now come to let's talk. In the let's talk part, first question is where do you cry? What are the things that make you cry? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है. I cry near my mother. मैं अपनी मम्मी के पास जाके रोती हूँ या रोता हूँ. Fighting with siblings make me cry sometimes. अपने भाई बहनों के साथ जब कभी लड़ाई होती है तो कभी मुझे रोना आ जाता है. तो ये तो बच्चों एक कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशंस में हमें रोना आता है.
तो उन सारी कंडीशंस को काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो आप लोग जब बात करते हैं आपस में, तो वाइल यू आर टॉकिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, इट इज़ लेट्स टॉक पार्ट। इट मीन्स इट इज़ सपोज दैट यू आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस with others, so you can discuss various conditions. While writing, I am just mentioning one condition, but while talking to others, while discussing this question, you can discuss so many other conditions. Okay, now come to second. Can you cry when you are happy? क्या आप रो सकते हैं जब आप खुश हों? No, I can't cry when I'm happy. देखिए, खुशी के भी आंसू होते हैं, बट बच्चों को रोना खुशी में नहीं आता है। ये वी आर टॉकिंग एट 5th लेवल, क्लास 5th लेवल। सम ऑफ यू मे और गिव एन आर्गुमेंट दैट वी क्राई इन हैप्पीनेस ऑल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हेन वी बिकम इमोशनली स्ट्रांग, वी फील हैप्पीनेस एंड सॉरो very strongly, then it happens, but in the matter of children it cannot be true. Okay, तो बच्चों के मामले में वो खुशी से बहुत ज़्यादा रो पड़े, ये भी till 5th class it is not possible, as we are talking into 5th class. Okay, अगर हम लोग बड़े बच्चों की बात करें तो वो केस अलग हो जाता है। Now come to the third. Which are the things that you make you happy? In what ways you show your happiness? तो इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, जिनकी वजह से आप खुश हो जाते हैं। इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? आप अपनी हैप्पीनेस को शो कैसे करते हैं? तो सम गिफ्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, आंसर है इसका सम गिफ्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, इनकरेजमेंट फ्रॉम टीचर, मेक्स मी हैप्पी, मेक्स मी फील हैप्पी। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें मेक्स यहाँ पर है मेक्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर मेक्स ही होगा। ओके डियर चिल्ड्रन, सम गिफ्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। जैसे कोई पेरेंट्स अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लीजिए वो आपको गिफ्ट में मिल जाए पेरेंट्स से, क्योंकि हमें और किसी से गिफ्ट्स बहुत रिसीव नहीं करने चाहिए, है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पेरेंट्स मेंशन कर दिया है। गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स, गुड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, इनकरेजमेंट फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स से हमें इनकरेजमेंट मिलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया एग्ज़ाम में ही, सर ने कुछ कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर अदर टाइम्स में वाइल क्लास डिस्कशन इन द क्लास। तो टीचर्स से जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, तो हम बहुत उससे खुशी महसूस करते हैं। तो चलिए, नाउ कम टू द से अलाउड पार्ट। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, दीज आर द सिनोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स नहीं, ये हैं होमोफोन्स, मतलब एक जैसी इनकी राइमिंग वर्ड्स हैं ये। तो डैश, बैश, स्प्लैश राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इन राइमिंग वर्ड्स को आपको से अलाउड, आपको जोर से बोलना है, ठीक है। तो आपको इन वर्ड्स को जोर से बोलना है, से अलाउड। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, ठीक है। इसमें आपको ये सारे वो हैं राइमिंग वर्ड्स, शार, पार, टार, फ्लार, मॉर, ये सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स भी क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं, जिनके लास्ट में, जिनका लास्ट जो है एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, जिनका अंत, तुकांत बोलते हैं इनको हिंदी में, जिनका अंत एक जैसा हो, जिनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन, जिनका लास्ट का आखिरी पार्ट का प्रोनंसिएशन सेम हो, उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो इन सभी का प्रोनंसिएशन जो एक लाइन में है, जैसे ए लाइन है, ये पूरी एक दूसरे की क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में। पोक्ड, क्रोक्ड, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन। वेप्ट, केप्ट, क्रेप्ट, लेफ्ट, स्लेप्ट। प्यारे बच्चों, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको कई चीज़ें समझ में ना आ रही हो, क्लियर ना आ रही हो, तो आप जो है इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, चीज़ों को बैक करके भी देख सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग, नाउ कम टू द वर्ड बिल्डिंग पार्ट। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द आंसर्स। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स विथ नेस, हैप्पीनेस में नेस लास्ट में जुड़ा हुआ है, देखिए। तो
तो नेस यहाँ पर दिया गया है कि नेस लास्ट में जुड़ा हुआ, चूंकि हैप्पी और नेस से मिलकर बना हुआ है ना, हैप्पी प्लस नेस, हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, तो हैप्पीनेस हो गया। तो अब आप लोगों को करना क्या है, हैप्पीनेस। इसी तरह से आप लोगों को और सारे 3 वर्ड्स बनाने हैं। राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड डू दे कम फ्रॉम। तो सैडनेस, सैड से मिलकर बना है, फ्रेशनेस, फ्रेश से मिलकर बना है, स्मार्टनेस, स्मार्ट से मिलकर बना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे मेंशन कर दी हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ कम टू लेट्स राइट पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स। आप कैसी फीलिंग आपको आएगी, कैसा फील करेंगे अगर वो सिचुएशन में आप हों तो। ठीक है, तो आप उस फीलिंग को एग्जैक्ट जो वो वहाँ पे जो फीलिंग आएगी उस प्लेस पर, तो उस फीलिंग को हमको मेंशन करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द टूरिस्ट्स वेयर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, अमेज्ड, शॉक्ड और वरीड। तो मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज किया अमेज्ड, क्योंकि वो वर्ड 7 वंडर्स में से एक है, तो उसको देख के अमेजमेंट ही होगा, तो इसलिए हम लोग उसमें अमेज्ड ही लिखेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड। अब यहाँ पर दिया गया है कि अचानक लाइट्स चली गई और मैं घर में अकेला था। तो घर में अकेले थे तो क्या होगा, आप डर जाएंगे जब लाइट चली जाएगी तो। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड, अनहैप्पी, एंग्री। अनहैप्पी भी हो सकता है, लेकिन अनहैप्पी जो बहुत दिन से बीमार था तो उनको चिंता हो गई उनकी, तो वरीड, यहाँ पे वरीड होगा। फोर्थ ऑप्शन, द शॉपकीपर वॉज शॉक्ड व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। तो देखिए अनहैप्पी, शॉक्ड और एंग्री। अनहैप्पी भी होगा अगर उसका गायब होगा तो, और एंग्री भी हो सकता है क्योंकि अगर उसका कोई सामान गायब हुआ। लेकिन फर्स्ट साइट, पहली बार कोई देखेगा कि उसका सेफ खुला हुआ है और उसमें से सामान गायब है, तो वो शॉक्ड फील करेगा कि अरे वो तो यहीं था, कहाँ चला गया, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ कम टू क्रिएटिव राइटिंग पार्ट। Narrate an incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. You can use the following clues: with whom, when did it happen, why, where. Okay? तो हम लोगों को एक कोई इंसिडेंट बताना है जिसमें ये हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हों, और ये क्लू यूज़ कर सकते हैं कि विथ होम, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाई, वेयर। तो चलिए अब हम लोग इसको क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। चूँकि आपको ये खुद लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी बच्चों की हेल्प के लिए लिख के दिखा दिया कि ये एक एग्जाम्पल है, एक फ्रेमवर्क है। आप लोग ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इससे अलग भी लिख सकते हैं। एक चीज़ नोट डाउन करिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी फ्यूचर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी वर्ड्स को। इट वॉज द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, ये मेरे बर्थडे का ओकेजन था। आई वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जब बच्चों का बर्थडे होता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज शाम को पार्टी होगी, गिफ्ट मिलेगा। आई वॉज सेलिब्रेटिंग विथ माई फैमिली, माई फादर गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट। आई वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज इट वॉज द वॉच विच आई लाइक द मोस्ट। तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट में वही वॉच थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका एक्सप्लेनेशन लेसन क्राइंग का। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ लिख सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।